प्रिय भाई और बहनों, हम प्रभु पिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज 25 मई 2020 है और सोमवार का दिन है। इस समय शाम के 7:30 बज रहे हैं। हम अपने इस बाइबल अध्ययन की श्रृंखला में आगे बढ़ना चाहते हैं और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमने पिछले हफ्तों में बाइबल अध्ययन के इस पादान पर कुछ उन बातों का उन पर ध्यान दिया जो हमारे लिए ज़रूरी है। और आज हम इस कड़ी में संत पौलुस के मिशनरी यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत की बातों पर गौर करेंगे। डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिलाइटेड टू also say welcome to you, and you have responded and you have been attending this Bible study, and I know that this Bible study has been a tremendous blessing to all of you for your spiritual life, for your spiritual well-being. And this Bible study will give you a lot of spiritual in-depth. आपके जीवन के लिए बाइबल स्टडी बहुत ज़रूरी है, जितना मेरे लिए ज़रूरी है, जिनके द्वारा हम उन आत्मिक बातों को समझना चाहते हैं जो प्रभु हमें सिखाना चाहता है। Now this study of St. Paul's missionary journey is totally on mission, and I am grateful to the Lord for that. So before we do the study, let us ask the Lord, request the Lord to bless us and prepare us for this study today. आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, बड़े धन्यवाद के साथ, बड़ी स्तुति और महिमा के साथ प्रभु इस समय हम आपके चरणों में आते हैं और हम जानते प्रभु कि आपने सुंदर अवसर हमें दिया है कि आज फिर से एक बार हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। प्रभु इस अध्ययन के लिए आप हमें तैयार करें ताकि हम इन वचनों के गूढ़ भेदों को समझें और अपने जीवन को प्रभु आपके हाथों में सौंप सकें। लॉर्ड, वी सरेंडर आवर लाइव्स ऑन योर ऑल्टर। टीच अस, लीड अस एंड गाइड अस। लेट योर होली स्पिरिट, प्रभु आपकी पवित्र आत्मा हमसे बातचीत करे। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Acts 16, verse 1 to 18. Paul came to Derbe and then to Lystra, where a disciple named Timothy lived, whose mother was Jewish and a believer, but whose father was a Greek. The believers at Lystra and Iconium spoke well of him. Paul wanted to take him along on the journey, so he circumcised him because of the Jews who lived in that area, for they all knew that his father was a Greek. As they traveled from town to town, they delivered the decision reached by the apostles and the elders in Jerusalem for the people to obey. The churches were strengthened in the faith and grew in numbers. Paul and his companions traveled throughout the region of Phrygia and Galatia, having been kept by the Holy Spirit from preaching the word in the province of Asia. When they came to the border of Mysia, they tried to enter Bithynia, but the Spirit of Jesus would not allow them to. So they passed by Mysia and went down to Trios. During the night, Paul had a vision of a man of Macedonia standing and begging him, "Come over to Macedonia and help us." After Paul had seen the vision, we got ready at once to leave for Macedonia, concluding that God had called us to preach the gospel to them. From Trios, we put out to sea and sailed straight for Samothrace, and the next day we went on to Neapolis. From there, we traveled to Philippi, a Roman colony and the leading city of the district of Macedonia, and we stayed there for several days. On the Sabbath, we went outside the city gate to the river, where we expected to find a place for prayer. We sat down and began to speak to the women who had gathered there. One of those listening was a woman from the city of Thyatira named Lydia, a dealer in purple cloth. She was a worshipper of God. The Lord opened her heart to respond to Paul's message. When she and the members of her household were baptized, she invited us to her home. "If you consider me as a believer in the Lord," she said, "come and stay at my house." And she persuaded us. Once, when we were going to the place of prayer, we were met by a female slave who had a spirit by which she predicted the future. She earned a great deal of money for her owners
were fortune telling. She followed Paul and the rest of us, shouting, "These men are servants of the Most High God, who are telling you the way to be saved." She kept this up for many days. Finally, Paul became so annoyed that he turned around and said to the Spirit, "In the name of Jesus Christ, I command you to come out of her." At that moment, the Spirit left her. प्रेरितों के काम 16:1-18 तक। फिर वह दिरबे और लूस्त्रा में भी गया। वहां तीमुथियुस नाम का एक चेला था, जो किसी विश्वासी यहूदिनी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। वह लूस्त्रा और इकुनियम के भाइयों में सुनाम था। पौलुस की इच्छा थी कि वह उसके साथ चले, और जो यहूदिनी लोग उन जगहों में थे, उनके कारण उसने उसका खतना किया, क्योंकि वह सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी था। और नगर नगर जाते हुए वह उन विधियों को जो यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों ने ठहराई थी, मानने के लिए उन्हें पहुंचाते जाते थे। इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। वह फ्रूगिया और गलतिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती कर रहा है, पार उतरकर मकिदुनिया में जा आ और हमारी सहायता कर। उसके ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा, ये समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। इसलिए त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्राके और दूसरे दिन नियापुलिस में आए। वहां से हम फिलिपी पहुंचे, जो मकिदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सब के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझकर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बात करने लगे। लुदिया नामक थुआथिरा नगर की एक बैंगनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया, तो उसने हमसे विनती की, "यदि तुम मुझे परमेश्वर की विश्वासिनी समझते हो, तो चलकर मेरे घर में रहो।" और वह हमें बनाकर ले गई। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, तो हमें एक दासी मिली, जिससे भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस की ओर और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, "ये मनुष्य परमाध्यान परमेश्वर के दास हैं, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं।" वह बहुत दिन तक ऐसे ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, "मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा।" और वो उसी खड़ी निकल गई। वचन के पढ़े और सुने जाने में हमें आशीष मिले। Dear friends, the chapter was already read to us, and this is Acts of the Apostle chapter 16, जो अध्याय जो हमारे सामने पढ़ा गया, 16 अध्याय, उसके 1 पद से लेकर के 18 पद तक, ये दूसरी मिशनरी यात्रा की शुरुआत की बात है और आगे इसके बढ़ने की बात है। और इन बातों पे जब हम ध्यान देते हैं तो प्रभु हमसे सचमुच में बात करता है। हम उन बातों को देखते हैं जो हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए अति आवश्यक है, इसलिए हम इन बातों पर गौर करें और इन पर ध्यान दें। अगर आप 15 अध्याय के आखिर में देखें तो यहाँ 40 और 41 पद में लिखा है, या मैं चाहूँगा आप 39 पद भी पढ़े जहाँ लिखा है, "अतः ऐसा विवाद उठा कि एक दूसरे से, यानी पतरस और बरनबास एक दूसरे से अलग अलग हो गए। अब बरनबास मरकुस को लेकर जहाज पर चढ़कर साइप्रस को चला गया, परंतु पौलुस ने सिलास को चुन लिया और भाइयों से परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपा जाकर वहां से चला गया, और वो कलीसियाओं को स्थिर करता हुआ सीरिया और किलिकिया से होते हुए निकला। नाउ here is the beginning of the second missionary journey, and we had already seen the scenario how they both were little in debate about
John Mark, because he had left the mission field in the first missionary journey. During the first missionary journey, did the homesick, and he had come to his place in Jerusalem. He had homesick. Now again Barnabas want to have him. यहाँ पर हम देखते हैं जब दूसरी मिशनरी यात्रा की शुरुआत होती है तो लिखा है कि बारनबास उसको फिर से ले जाना चाहते हैं कि हम इसको दोबारा मौका दें, क्योंकि जवान बच्चा है, पहली बार आ गया था, लेकिन आगे प्रभु की सेवा के लिए बहुत कुछ करेगा। और तो उसने ये बोला पौलुस को कि भाई महाशय इसको हम ले चलें। पर पौलुस ने साफ साफ बोला कि उसने हमारे पहले काम के समय, पहले ट्रिप के समय जब हम उसको साथ ले गए थे तो उसने हमारा साथ नहीं दिया था। लिखा है, अगर आप देखें यहाँ पर 37-38 पद 15 अध्याय प्रेरितों का, तब बरनबास ने यूहन्ना को जो मरकुस कहलाता है साथ लेने का विचार किया, परंतु पौलुस ने उसे जो पंफुलिया में उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ ना गया था, साथ ले जाना अच्छा ना समझा। पौलुस इन तमाम कामों को बड़े डेडिकेशन के साथ, बड़ी समर्पण के साथ कर रहा था। और ये नहीं कि वो जवानों को मौका नहीं दे रहा, मांग रहा था, लेकिन वो जानता था कि अगर हम दोबारा ले जाएं तो फिर कहीं ना कहीं कोई बात होगी, ये देखेगा, इन तमाम तकलीफों को देखेगा, फिर वापस आना चाहेगा। उसके लिए धन इकट्ठा करो, जहाज का टिकट खरीदो, उसको भेजो, तो उसमें कितना समय बर्बाद होगा। तो पौलुस ने कहा बरनबास को कि इस बार इसको रहने दो, आगे हम देखेंगे, सोचेंगे, पर अभी मैं नहीं ले जाऊंगा। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पर हम देख दोनों अलग अलग हो जाते हैं। लिखा है कि बरनबास ने जॉन मार्क को लिया और वो साइप्रस को चला गया। और साइप्रस उसकी जगह थी जहां का वो था बरनबास, तो उसने उसको लिया और उसने उसको अपने साथ रखा। इसमें एक और बात, जो खास बात है, जो मेरे समझ में आती हुई ये है कि जब जवानी की अवस्था में वो इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं होते, उनके पास अनुभव की कमी होती है, तो कभी कभी वो गलतियां करते हैं। लेकिन अगर वो गलतियों को छोड़े और वो इस बात का एहसास लीडर्स को करने दे कि भाई अब मैं अच्छे से रहूँगा सर, मेरी आप मदद करें, तो मौका देना चाहिए। यहाँ पर एक बात जो मैं सीखता हूँ, जो बरनबास ने कहा, लेकिन पौलुस का उसको ना ले जाना, पौलुस के पास एक कारण था कि भाई अगर ये दोबारा आना चाहे तो हमें सारे काम को छोड़ करके, लिखा है काम पर नहीं जाता था। इसका मतलब ये कि रोज ये लोग काम पर जाते थे। किस काम के लिए? सुसमाचार के प्रचार के लिए। वहाँ की सिनेगॉग में प्रचार करते थे और इस प्रकार से ये लोगों से यीशु मसीह के बारे में सुनाते थे। मिशनरी जर्नी उनके लिए ये नहीं था कि जाकर वहाँ रहे और वहाँ आराम करे, ये नहीं, आराम नहीं था पौलुस के लिए। ये निरंतर अपने भाई बरनबास के साथ जाते थे, और अब जब उसने सिलास को चुन लिया तो उसके साथ जाएंगे। तो परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल करा और इस प्रकार से वो दूसरी मिशनरी यात्रा के लिए वहां जाने को तैयार हुए। तो लिखा है परंतु पौलुस ने सिलास को चुन लिया। अब सिलास कौन आप जानते हैं? सिलास वो व्यक्ति है जो यहूदा बरसब्बा के साथ, पौलुस और बरनबास के साथ यरूशलेम काउंसिल के डिसीजन को लेकर के यरूशलेम से सीरिया के अंतरक्रिया में आए थे। और जब बाकी लोग चले गए तो सिलास वहीं रुके रहे। वहां उसके रुकने का कोई कारण नहीं दिया गया, लेकिन शायद उसके हृदय के अंदर आया होगा कि अगर तुम यहाँ रुके रहोगे तो परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करेगा। और यहाँ पर वो वक्त उसके लिए आया। हालांकि सारी बात तो यहाँ नहीं लिखी हुई है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि उसके सामने ये बात आई कि अब मैं पौलुस के साथ जाऊं। और जैसे पौलुस ने बोला, उसने कहा हाँ मैं जाने को तैयार हूं। तो यह लिखा है कि पौलुस ने सिलास को चुन लिया और भाइयों से परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपा जाकर वहां से चला गया। फिर से उनका डेडिकेशन होता है। अब मैंने आपको पहले कहा था कि जो मिशनरी सेवा के अंदर है, मिशन फील्ड में है, उनको हम प्रभु के सामने समर्पित करते हैं। पहली बार जब जाते हैं या कुछ सालों के बाद जब जाते हैं, जहां से उनको डेडिकेट किया गया था, अगर वो आते हैं तो उनके ऊपर हाथ रखा जाता है। लेकिन रोज जो उनके लिए प्रार्थना करने वाले लोग हैं, विश्वासी लोग हैं,
जब उनके लिए प्रार्थना करते हैं सुबह या शाम को, तो उनको प्रभु के काम के लिए डेडिकेट करते हैं, समर्पित करते हैं। प्रभु ये सेवक आपके हैं जो मिशन फील्ड में है, प्रभु जहां वो दुख उठा रहे हैं, आप उनकी मदद करें, आप इनकी सहायता करें, ताकि आप में बढ़ते चले जाए और उनका जीवन, इनकी सेवकाई आपको पसंद आ सके। तो यहाँ पर उनको डेडिकेट किया गया और उस काम के लिए सौंपा गया। और यहाँ लिखा है कि वे यानी सिलास और पौलुस, या पौलुस और सिलास परमेश्वर के अनुग्रह में सौंपे जा करके अंताक्या से फिर से उस यात्रा में चले गए जिसमें उनको जाना था। और वो कलीसियाओं को स्थिर करता हुआ सीरिया और किलिकिया से होते हुए निकले। जहां जहां पहले गए थे, मिशनरी यात्रा में गए थे, हमने देखा कि कहाँ कहाँ गए थे। ये पिसिदिया के अंताक्या में गए थे, ये किलिकिया में गए थे, ये इकुनियम में गए थे, ये लुस्त्रा में गए थे, और जगह में गए थे। वहां जाकर इन्होंने विश्वास को स्थिर करा, उनको देखा को कैसे हैं। और इस कार्य को हम कहते हैं अनुवर्तनीय कार्य या फॉलो अप। इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। जब हम सेवा के लिए सब कुछ अर्पण करते हैं, मेहनत करते हैं, और अगर फॉलो अप नहीं करते हैं तो फिर सेवा का कोई प्रतिफल नहीं मिलता। केवल रिपोर्ट बना देने से, ये रिपोर्ट को कहीं भेजने से कि भाई देखो हमने इतना काम करा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Merely sending report to the sponsors or to the ones who are praying for us is not enough. We need to do the follow-up, and follow-up is very, very important. So these people, Paul and Silas, they went into the same places where Paul had been earlier. जहाँ पौलुस पहले गया था, वहाँ वो साइलस को लेकर गया। और यहाँ पर इन जगहों का नाम तो दिया गया है, अगर आप पढ़ें यहाँ पर, वो वहाँ गए जहाँ पहले गए थे, इकुनियम में गए, लुस्त्रा में गए, दिरबे में गए और आगे चले गए। पहली बात हमारे देखते हैं। अब हम आते हैं 16 अध्याय के पहली बात में। फिर वो दिरबे और लुस्त्रा में भी गया। वहां तीमुथियुस नाम एक चेला था जो किसी विश्वासी यहूदी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। लुस्त्रा और इकुनियम के भाइयों में सुनाम था। अब यहाँ पर जब ये पहुंचे लुस्त्रा में, जहां आप याद करेंगे पौलुस को पत्थर से मारा गया था, वहां पर इनको एक जवान मिला जो पहले भी था, लेकिन पौलुस ने शायद उस पर ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि वहां तो पौलुस को वहां से निकलना पड़ा ना। पौलुस को पत्थर से मारा गया था। और दूसरे ने लिखा है कि जब वो अपने उनको वहां से हटा दिया गया, भाई यहाँ से जाओ, तो वहां से दिरबे को चले गए। तो शायद ये मौका नहीं मिला था उनको, पौलुस को। लेकिन ये जवान उनके पीछे पीछे घूमता था, उनको देखा था, और इसने अपने आप को कहा कि भाई ये व्यक्ति, इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति जो प्रभु के स्वर्ग राज्य की बात करते हैं, हमारे इन लोगों ने पत्थर से मारा और घसीट के बाहर ले गए, और अब वो यहाँ से चले गया था, अब दोबारा यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर तीमुथियुस उनको मिला, और तीमुथियुस का निर्णय था कि साहब मैं आपके साथ सेवा करूंगा, क्योंकि आपके अंदर मैंने वो जज्बात देखी है, वो बोझ देखा है जो सुसमाचार प्रचार करने के लिए है, जिसको मैं अन्यथा नहीं पाता। इसलिए मुझे आपके साथ जाने की अनुमति अब दीजिए, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। तो यहाँ लिखा है कि ये पौलुस को मिला, और ये प्रभु यीशु मसीह का नया चेला था जो किसी विश्वासी यहूदिनी का पुत्र था। इसकी माँ की यहूदी स्त्री थी, तीमुथियुस की माँ की यहूदी स्त्री, लेकिन इसके पिताजी यूनानी थे, अन्य जाति। और इसलिए चूंकि इसको पौलुस अपने साथ रखना चाहता था, पौलुस ने उसके साथ कुछ ऐसा कार्य करा जिसके बारे में यहाँ पर हम आगे चल के देखेंगे। तो यहाँ पर ये व्यक्ति उसको मिला, और यहाँ लिखा कि वो इकुनियम के भाइयों में, लुस्त्रा और इकुनियम के भाइयों में सुनाम था। सुसमाचार प्रचार के काम में जो लगना चाहते हैं, उनका चरित्र अच्छा होना चाहिए। चरित्र के अंदर हम सब देखिए, जन्म से तो हमने पाप किया, हमारे स्वभाव में पाप है, लेकिन एक दिन वो जीवन में आता है समय जब हम अपने पापों का पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर के सामने यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं और हम उसके विश्वासी बन जाते हैं। फिर हम बार बार ना कहें कि हम पापी हैं, पापी हैं, पापी हैं, कहने की जरूरत नहीं, कि प्रभु ने आपको शुद्ध करा है, पवित्र करा है, अब उसका विश्वासी बन गया। इसलिए जब कभी जीवन में गलती हो जाती है तो माफी मांगने की आवश्यकता है। प्रभु मुझे क्षमा करे क्योंकि आज मैंने जाने अनजाने में कुछ ऐसा काम करा, लेकिन जो ओरिजिनल सीन है, पाप है जो हमारे हृदय के अंदर था, हमारे जीवन का, हमारे लहू के अंदर, यीशु मसीह के लहू के द्वारा उसको
ढांप दिया गया, हम क्षमा कर दिए गए। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो बार बार हम ना कहें प्रभु हम पापी हैं। अगर यीशु मसीह के द्वारा आपको क्षमा मिलने का आश्वासन नहीं है तो आप बार बार बोलते रहेंगे, अंत तक बोलते रहेंगे। इसलिए यहाँ पर उस बात की आवश्यकता है कि हम यीशु मसीह के पास आए और अपने गुनाहों से तौबा करें और अपने पापों का प्रायश्चित करें। और जब हम प्रायश्चित करते हैं तो प्रभु हमें क्षमा करता है, हम उसके परिवार के सदस्य बन जाते। लिखा है यूहन्ना का सुसमाचार 1:12 वहां लिखा कि जितने ने उसको ग्रहण किया उन सबको परमेश्वर अपने संतान होने का अधिकार देता है, अर्थात उनको जिसके नाम पर विश्वास कर। तो हम उसके द्वारा विश्वासी बन जाते हैं और प्रभु के सामने उसके परिवार के अंग बन जाते हैं। यहाँ पर अब दूसरी बात को देखिए क्या लिखा। व्हाट इज द सेकंड थिंग? पौलुस की इच्छा थी कि वह उसके साथ चले और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे उनके कारण उसने उसका खतना कराया, क्योंकि वे सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी है। ना पॉल वाज वेरी वाइज, वो बहुत ज्यादा समझदार व्यक्ति तो जानता था हमारे साथ रहेगा ही। और लोग कहेंगे भाई इसको आप कैसे लेके घूम रहे हो, तो ये यहूदी नहीं है, गैर यहूदी, इसके पिताजी तो यूनानी है, तो क्या इसका खतना कराया? अगर आप जेरूसलम काउंसिल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो शायद पौलुस को ऐसा नहीं कराना था, लेकिन पौलुस ने सोचा कि कहां किससे हम उलझते रहे इसके लिए, तो उसने उसका खतना कराया। And we read here about Timotheus. Paul wanted Timothy to accompany him, and he took him and circumcised him because of the Jews who were in those places, for they all knew that his father was a Greek. क्योंकि पौलुस चाहता था कि इनके साथ चले तिमोथी, इसलिए और वो जानता था कि इसकी माँ एक यहूदी स्त्री है, इसके पिताजी एक यूनानी है, तो उसने उसका खतना कराया ताकि पौलुस के काम में, सुसमाचार के इस काम में जो रिदम के समान था वो रिदम ना टूटे, वो कार्य में कड़ी ना टूटे। पौलुस ने उसका खतना करा और उसने विलिंगली ऐसा होने दिया। मित्रों, यहाँ पर हम एक चीज और पाते हैं जो हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इन दी मिशन ऑफ गॉड, प्रभु के मिशन में, उसके सुसमाचार के प्रचार के कार्य में हमारी जो व्यक्तिगत बाधाएं हैं या व्यक्तिगत चीजें हैं जो बाधा उत्पन्न कर सकती है, उनको हमें सही करना है, ताकि आगे चल के जब हम सेवा में पाए जाते हैं, अपने आप को पाते हैं, तो किसी प्रकार से कोई रुकावट या अवरोध न उत्पन्न हो। एंड हियर इज ए वेरी क्लियर इंडिकेशन, एज पॉल आस्क्ड तिमोथियस टू बी सर्कमसाइज्ड, और उसने ऐसा होने दिया। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं संत पौलुस के बुद्धि समझ के लिए और सिलास के लिए, जो प्रभु के दास लोग थे, और इन्होंने इसको अपने साथ लिया ताकि वो इनके साथ साथ रहे। प्रभु की स्तुति हो इस जीवन के लिए जो प्रभु हमें यहाँ दिखाता है। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं जो यहाँ तीसरी बात है, चौथा पद, प्रेरितों का उसका 16 अध्याय 4 पद। और नगर नगर जाते हुए वे उन विधियों को जो यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों ने ठहराई थी मानने के लिए उन्हें पहुंचाते जाते थे। Now, what was their prime work? Yeah, of course, the gospel preaching was the preaching of the gospel was there, the foremost. लेकिन परंतु वो अपने साथ उस पार्चमेंट को लेकर घूमते थे। शायद उन्होंने उसका फोटोस्टेट करा हो गया, जो भी करा हो गया, जैसे भी करा होगा। जहां जहां गए उन्होंने विश्वासियों लेकर नगर नगर जाते हुए, as they went on their way through the cities, they delivered to them for observance the decisions that had been reached by the apostles and elders who were in Jerusalem. इन्होंने उन सबको पहले समझा दिया, साउंड कर दिया कि देखो भाई, हमारे लिए जो एक नियम बनाया गया है प्रेरितों के द्वारा, संतों के द्वारा, और वहां पर ये बताया गया, जो हम देखते हैं, फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा उस पद को जहां लिखा है, प्रेरितों का उसका 15 अध्याय 29 पद, Acts of the Apostles chapter 15 verse 29। यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? What was that parameter, decision of the apostles and the saints in Jerusalem, that you abstain from what has been sacrificed to the idols. Number 1, to abstain from idol worship. Number 2, and from blood, और लहू ना खाएं, क्योंकि लहू में प्राण होता है और प्राण को तुम्हें खाने का अधिकार नहीं है। ये व्यवस्था दी गई थी। दूसरी बात। तीसरी बात,
एंड फ्रॉम व्हाट हैज बीन स्ट्रेंगल्ड, जिसको मोड़ा गया है या जिसको घोटा गया है, गला घोटा गया है, उससे अपने आप को अलग रखो। और चौथी बात उन्होंने बताया, एंड फ्रॉम सेक्सुअल इमोरलिटी, और व्यभिचार से बचे रहो। तो जहां जहां जाते थे सबसे पहले लोगों को ये बता देते थे, खासकर वे लोग जो उनको कुछ बोल सकते थे या यरूशलेम में उनके खिलाफ कुछ अलग अलग सिनेगॉग में उनके खिलाफ कुछ आवाज उठा सकते थे, उनको पौलुस और सिलास और तीमुथियुस इन बातों को समझा देते थे कि साहब ये निर्णय लिया, खासकर पौलुस और सिलास, क्योंकि अब तो बरनबास उनके साथ नहीं थे, वो साइप्रस चले गए थे जॉन मार्क को लेकर के। और इसके बाद अब बरनबास का वर्णन कहीं नहीं पाते। परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति पौलुस, जिसको परमेश्वर ले जा रहा था, इसलिए निश्चित रूप से बरनबास वहां सेवा करी होगी, जॉन मार्क वहां सेवा करी होगी। यही जॉन मार्क है जिसने मरकुस रचित सुसमाचार की रचना करी। लेकिन अब यहाँ पर जो प्रोमिनेंस में है, जिसका नाम बार बार आता है, वह है पौलुस। पौलुस पौलुस, क्योंकि परमेश्वर ने उसको चुना था कि वो अन्य जातियों में उसका गवाह ठहरे। तो यहाँ साफ साफ लिखा है, जिसको हम पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छे से ऐसे समझा गया है कि ये लोग जिन नगरों में गए, वे उन विधियों को जो यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीन उन्होंने ठहराई थी, लोगों को मानने के लिए उनको समझाते थे कि ये मानो। अब इसके बारे में कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई मनमुटाव नहीं होगा, कोई अलगाव नहीं होगा, क्योंकि आगे चल के पिछले दिनों में इनके चलते इनमें अलगाव हो गया था। कुछ यहूदी लोग जो यरूशलेम से आए थे, अंताकिया में लोगों को बरगला दिया उन्होंने, अरे बात इधर उधर और पहुंच गई। लेकिन अब इन्होंने सोचा कि हम इसके पहले की बाकी बातें करें। सुसमाचार तो सुनाते थे, लेकिन उसके साथ साथ बताते थे कि 4 बातें इसको ध्यान रखो, और इन बातों में तुम्हारे बीच में कभी कोई झगड़ा ना हो, कभी कोई मतांतर ना हो। और ये पौलुस की समझदारी थी कि जब उसने इस काम को करा तो उसने लोगों को समझाया कि वो इन बातों को जाने और समझे और इन बातों से अपने आप को अलग रखें। यहाँ पर लिखा है चौथी बात, इस प्रकार कलीसियाएं विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। द चर्च ग्रू, सो द चर्चेस वेर स्ट्रेंथेन्ड इन द फेथ एंड दे इंक्रीज्ड इन नंबर्स डेली। कलीसिया बढ़ती गई, क्यों? क्योंकि कलीसिया में उन बातों को सिखाया गया जो प्रभु के आत्मा ने उनको बताया था। अगर अपनी बातें सिखाते तो कलीसिया के नंबर में ऊपर नीचे होता, कभी जा रहे हैं कभी आ रहे हैं, और आज यही हो रहा है, क्योंकि हम लोग अपनी बातों को ज्यादा सिखाते हैं। अब प्रभु की बातों को सिखाएं कलीसिया के अंदर, कलीसिया में लोग चिपके रहेंगे, जुड़े रहेंगे और नहीं जाएंगे। लेकिन जो अगर जाना चाहते हैं उनको ईश्वर उनका मालिक है, हम उनके लिए कुछ नहीं कह सकते। और इसलिए कभी कभी हम अपने स्वतंत्रता को इतना ज्यादा प्राइम देते हैं, स्थान देते हैं कि सारी जो बातें प्रभु के आत्मा की हैं उनको हम गौण बना देते हैं। नुकसान हमें होगा आगे चल करके, इस बात को हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम उन कामों को करते हैं। लेकिन यहां पर लिखा है कि कलीसिया बढ़ती चलेगी। द चर्च ग्रू, दे बिकम स्ट्रेंथेन्ड इन द स्पिरिचुअल लाइफ, क्योंकि दे न्यू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। व्हेन द टीचिंग्स आर क्लियर, जब शिक्षा बिल्कुल साफ साफ है, शुद्ध है, प्रभु के आत्मा के अगुवाई में है, तो लोगों का विश्वास मजबूत होता है। और लोग इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हमें अपने जीवन में इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि हमें, जब हम प्रचार के लिए जाते हैं, मिशनरी सेवा करते हैं, तो हम विश्वासियों के जो नए हैं उनके विश्वास को मजबूत करें, अपने जीवन की साक्ष्य को देकर, और उससे बढ़कर वचन को सुनाने के द्वारा, शुद्ध वचन को सुनाने के द्वारा उसमें कोई लाग लपेट ना हो, कोई धोखेबाजी ना हो, और अपने जीवन के समर्पण के द्वारा इस बात को जाने कि जो ये कह रहे हैं ये इसको मानते हैं। वॉट एवर दे सेइंग दे ऑल्सो ऑब्जर्व एंड दे आर अबाइडिंग इन दोज थिंग्स, एंड देन द चर्च विल ग्रो। Then the church will grow. Church will not grow by the programs. We can have 1 and 100 programs, spend lot of money, उससे कलीसिया नहीं बढ़ेगी। कलीसिया कैसे बढ़ेगी? जब हम विश्वासियों के जीवन को, उनके विश्वास को वचन के आधार पर मजबूत करते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं, वो भी दूसरों के पास जाके बताएं, तो ये जो है ना,
2 + 2 4, 4 + 4 8 and 8 + 8 16, ये कलीसिया की ग्रोथ होगी। ये गुणानवाद ये कलीसिया का है। कलीसिया में पहले कितने लोग थे? 3120, और फिर बढ़ते 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 आज दुनिया में सबसे अधिक लोग जो हम पाते हैं धार्मिक रूप से प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। चाहे एशिया की बात करें, चाहे अफ्रीका की बात करें, चाहे लैटिन अमेरिका की बात करें, चाहे और जगह की बात करें, लोग बढ़ रहे हैं। बहुत सी संख्या हमें नहीं पता, बहुत बार हम नहीं जानते क्योंकि बताया नहीं जाता। पिछले दिनों मैं एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें बताया गया कि वहाँ जो आराधना हो रही है, अफ्रीका का देश था, वहाँ बताया गया कि 6 किलोमीटर तक लोग बैठे हुए थे आराधना के लिए। 6 किलोमीटर, कितने लाख लोग होंगे? कम से कम 10 लाख लोग होंगे, 10-15 लाख होंगे आराधना में बैठे हुए। लोग बढ़ रहे हैं, हम इन बातों को नहीं जानते। प्रभु अपने लोगों को आज बढ़ा रहा है उन जगहों पर जहां के हम सोच नहीं सकते, जहां तकलीफ आई, परेशानियां आई, लेकिन अब लोग बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सत्य तो सत्य है। यीशु मसीह के विचारों को, उसके सुसमाचार को कोई झुठला नहीं सकता। जब लोग पश्चाताप करते हैं, उनके जीवन में आनंद, खुशी आती है। फिर प्रभु उनको चंगाई भी देता है और प्रभु उनकी सहायता करता है। गरीबी तकलीफ के अंदर प्रभु उनको संभालता है और उनका जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बनता है, और लोग जो अंधकार में हैं वो ज्योति में आते चले। और ऐसा होगा, लोग आते चले जाएंगे, कलीसिया की बढ़ोतरी होती चली जाएगी। और यहाँ लिखा है, इस प्रकार उन्होंने कलीसियाओं को विश्वास में स्थिर किया और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। संख्या में बढ़ती गई, कलीसिया मजबूत होती चली गई और संख्या में बढ़ती गई। क्या हमने यहाँ पर इसके लिए सोचा? हमारी जो कलीसिया है, ये कलीसिया आज हमारे पास करीब 350 परिवार है, 400 परिवार है। अगर हम संख्या में करें प्रॉपरली, अगर हम इनके सारी बातों को रखें, स्टैटिस्टिक्स रखें और उनके नाम फॉर्म में दर्ज हों, वो जो भी प्रभु को देना चाहते हैं उसको लिख कर दें, तो हमको पता होगा भाई इतने हमारे लोग हैं, और आगे भी और बढ़ेंगे, कलीसिया तरक्की करेगी। अरे ये जरूरी है। लेकिन अगर हम उसमें ढिलाई बरतते हैं, उसको नहीं करना चाहते हैं, किसी और अज्ञान बात के कारण कि भाई ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। प्रभु पर भरोसा रखिए, वो संभालेगा। Let us trust in God. Let us trust in God that He will protect us. Who has protected us thus far, He will protect us in future also. अगर हमारे पास ऐसी संख्या हो, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट हो, और हम इसके बारे में और आगे मेहनत करें और एक स्ट्रेटेजिक रूप से आगे बढ़ें, तो ये कलीसिया जिसकी शुरुआत आज से 60-65 साल पहले हुई, आज और बढ़ती जाएगी। अगले 10 सालों के अंदर इसमें ग्रोथ देखेंगे। But there should be a statistical growth program. हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो इस प्रकार से होने की आवश्यकता है, और ये होगी, हमें करने की आवश्यकता है। पौलुस के समय में आज से 2000 साल पहले जब इतना कुछ नहीं था, तब भी वो करते थे, और पौलुस उनके बीच में जाना चाहा, कि वो जानता था कि वहां पर लोग हैं जिनको हमने सुनाया, वो प्रभु के विश्वासी हैं, तो गए, उनसे मिले, follow up was done, and therefore the church grew. पांचवी बात, 16 अध्याय 6वां पद, वे फ्रूगिया और गलतिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। Now here is the decision of the Holy Spirit. He said, don't go to Musia. Don't go to Musia. Don't go to Asia now. पवित्र आत्मा ने उन्हें मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में वो जाना चाहे, परंतु यीशु के आत्मा ने उनको जाने नहीं दिया। यहाँ पर आप देखते हैं कि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में सुसमाचार सुनाने से मना करा, और इसकी क्या वजह थी? क्योंकि इनकी जो प्रेजेंस थी
उसकी आवश्यकता इनको थी मैसेडोनिया में, मकदूनिया में, यूरोप में, क्योंकि वहां पर कुछ लोग वेट कर रहे थे जो प्रभु में आने वाले थे, जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसको अभी और देखेंगे हम आने वाले समय में। इसलिए प्रभु की आत्मा ने कहा, यीशु की आत्मा ने कहा कि तुम एशिया में मत जाओ और मूसिया में मत जाओ। तो क्या लिखा है, उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। It is total indication, clear indication that they were being guided by the Holy Spirit in the missionary journey. पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई कर रहा था, हम मिशनरी यात्रा में आगे बढ़ रहे थे। उनके मन में कोई डर नहीं था, कोई शक नहीं था, वो जानते थे कि अगर जान देनी पड़े तो हम जान दे देंगे, लेकिन प्रभु के लिए हम जान देंगे। अब प्रभु उनको बढ़ाता चला गया, प्रभु ने उनको आगे बढ़ाया, और उनकी जो सेवा थी प्रभु के नाम से वो आगे बढ़ती चली गई और प्रभु में फलवंत होती चली गई। तो यहाँ लिखा हम पढ़ते हैं 7वें पद में, we read 6 and 7. And they went through the region of Phrygia and Galatia, having been forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia. And when they had come up to Mysia, they attempted to go into Bithynia, but the Spirit of Jesus Christ did not allow them. Two things are here. Number one, the Holy Spirit was guiding them. The Spirit of Jesus was guiding them. And number second is their obedience to the will of the Lord. दो बातें यहाँ पर हम देखते हैं। यीशु मसीह का आत्मा उनको ले जाना चाहता था और उनको मना भी कर रहा था कुछ जगह में जाने के लिए, लेकिन जो यहाँ पर एक और बात है वो ये जो शिष्य लोग थे, जो पौलुस था, सिलास था और तिमुथियुस था और बाकी और लोग थे वहां पर, वो पवित्र आत्मा के अगुवाई पर निर्भर रहते थे और उसकी आज्ञा मानते थे। आज भी पवित्र आत्मा बात करता, आज भी वो हमसे बोलता, उसकी आवाज धीमी यहाँ आती है, हृदय के अंदर आती है, पर क्या हम उसकी आवाज सुनते हैं? कई बार जब हमारा स्वार्थ सामने होता है, हमें कुछ बेनिफिट दिखता है तो हम कहते हैं भाई इसको कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और उसकी आवाज, धीमी आवाज जो है उसको हम अपने विवेक में दबा देते हैं और इसलिए आगे चल करके नुकसान होता है। फिर हम बोलते हैं कहाँ गलती हुई, गलती कहीं ना कहीं हुई। आज हमारे इस मिशन फील्ड में, हमारे समाज में कई बार हम गलतियों को बाद में महसूस करते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल बाद, और कहते हैं यार उस समय गलती हो गई थी। गलती क्यों हुई? क्योंकि हमने प्रभु के आत्मा की बात पर ध्यान नहीं दिया। हम सोचे कि ये होना है, इसको करना, ये करना है, तो हमने कर दिया। मिशनरीज जो पश्चिम देश से आते थे, वो अपने जीवन में इन बातों पर बहुत गौर करते थे, इसलिए उन्होंने उन कामों को करा हमारे लिए, और बहुत से हमारे लिए उन्होंने आशीषें खरीद कर चले गए, रख गया हमारे लिए। लेकिन आज हम उससे महरूम हो रहे हैं, उससे हम अलग हो रहे हैं, क्योंकि हम अपने एजेंडा को पहले रखते हैं और फिर जब समय हो जाता है तो रोते हैं कि ये गलत हो गया। क्यों? अल्टीमेटली हमने प्रभु की आज्ञा नहीं मानी, उसकी इच्छा को पूरा नहीं करा। उस समय जब हम अपनी इच्छा पूरी कर रहे थे, अच्छा लग रहा था कि भाई ईश्वर की इच्छा है, लेकिन आगे चल के 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद ऐसा लगता है कि भाई गलत कर ली। लेकिन यहाँ पर इंस्टेंट ओबीडियंस है। प्रभु के आत्मा ने कहा कि वहां मत जाओ एशिया में, वो नहीं गए। उसने कहा मूसिया में मत जाओ, वो नहीं गए। और तब रात के समय जब सो रहे थे तो दर्शन में प्रभु ने पौलुस से कहा मैसेडोनिया को जाओ, गो टू मैसेडोनिया, मकदूनिया को जाओ। 6वीं बात, 9 पद, पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकदूनी पुरुष खड़ा हुआ, उनसे विनती करके कह रहा है, पार उतरकर हम मकदूनिया में आ और हमारी सहायता कर। And a vision appeared to Paul in the night. A man of Macedonia was standing there urging him and saying, come over to Macedonia and help us. That's a vision. In the dream, Paul saw that very clearly, and he saw a person standing in Macedonia saying, friends come, brothers come, help us, we need your help, spiritual help and all type of help we need from you. परमेश्वर की जब ये आज्ञा मान रहे थे, जब यीशु की आज्ञा मान रहे थे, तो यीशु मसीह उनकी अगुवाई कर रहा था। When you obey, you are being led by the Holy Spirit. But if there is no obedience, there will be no leading also, because you don't obey. I don't obey. हमारी कलीसिया के अंदर बहुत से काम हम करना चाहते हैं, लेकिन क्या वास्तव में प्रभु की इच्छा में कर रहे हैं या अपनी इच्छा में कर रहे हैं? हमें देखने की आवश्यकता है। We today have become so much of report oriented
कि give the report. To whom you are giving report? Is that report is given to Jesus or to the people? Report will not yield any fruit. Your obedience, my obedience to the will of God will yield fruit. अगर उसके आज्ञा पालन में, हमारे आज्ञा पालन में उसमें दुख भी है, कठिनाई भी है, तो उसको हमें स्वीकार करना है, ग्रहण करना है, और उसमें प्रतिफल देखेंगे, हम प्रतिफल देखेंगे। लेकिन अगर हमने यही करा कि भाई चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, कर लो जो करना है, रिपोर्ट दे दो और रिपोर्ट हो जाएगा, रिपोर्ट से कुछ नहीं होता, रिपोर्ट से कुछ नहीं होता। रिपोर्ट तो दुनिया के लिए है ना, प्रभु चाहता है फल। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी रिपोर्ट से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, उसने कहा तुम्हारे फलों से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यूहन्ना 15 अध्याय 8 पद को 10 बार पढ़िए, 100 बार पढ़िए, लिखा है कि लोग तुम्हारे फलों को देखेंगे और जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। एंड पीपल विल सी योर गुड वर्क्स एंड योर फ्रूट एंड दे विल नो दैट यू आर माय डिसाइपल्स। हमें अपने जीवन के अंदर झांक कर देखना, गहराई में देखना है कि आज हम कहां पर खड़े हैं। मित्रों, मैं इन बातों को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं इस बात को, आई एम कन्विंस्ड ऑफ दिस थिंग्स, मुझे कहने की आवश्यकता है कि वी नीड टू बी ओबीडियंट सो दैट फ्रूट इज देयर इन द मिनिस्ट्री। लोग आए प्रभु के चरणों में हमारे काम के द्वारा, नहीं तो इतने साल तक हमने करा, क्या प्रतिफल हुआ? पुराने लोग थे, चले गए, अब नए आ गए और आते चले जाएंगे। चर्च हैज टू टाइप ऑफ ग्रोथ, वन इज बायोलॉजिकल ग्रोथ and other is growth by conversion. Biological growth will be there always. दो प्रकार से कलीसिया बढ़ती है। एक तो बायोलॉजिकल, जहां बच्चे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, फिर उनके परिवार होता है, फिर वो तो कलीसिया। Are we depending on that type of growth? और growth by conversion, जब लोग प्रभु के पास आते हैं, सुसमाचार सुनते हैं और उनके मन परिवर्तन हो जाते हैं, तो कलीसिया में आते हैं। That is real growth and that comes from a mission. That is possible by mission. When people accept Jesus Christ from darkness to light, the numbers increases in the church. It multiplies in the church. Here we see that the church grew every day. Verse 5 also, the church grew every day, increased in number day by day. So we are seeing now the sixth thing, that the Spirit of Jesus said, don't go to Mysia, don't go to Asia, and they obeyed. And then we see also the vision that Paul had. The person from Macedonia was inviting them, and they decided to go to Macedonia. उन्होंने निर्णय लिया कि मैसेडोनिया जाएंगे, क्योंकि पौलुस ने बांटा होगा। सुबह उनके सामने जब उठा तो पौलुस ने कहा, भाइयों आओ मेरे पास बैठो। आज रात प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला है और मैंने दर्शन में देखा कि एक व्यक्ति खड़ा है, ये जो देख रहा है मैसेडोनिया, हमें वहां जाने की आवश्यकता है, हमें वहां जाने की आवश्यकता है। और वो वहां जाने के लिए उन्होंने तैयारी की और आखिर में वहां पहुंचे। कल हम इसे आगे देखेंगे। टुमारो विल सी बियॉन्ड दिस फ्रॉम वर्स 11, कल हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने कुछ बातों को देखा, मैं चाहता हूँ उन बात को हम ध्यान दें। प्रभु के इस मिशन में, प्रभु के इस काम में हमें अपना को अलर्ट रहने की आवश्यकता है, ताकि हम उसके पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलें और उसकी आज्ञा को मानते रहें। कलीसिया बढ़ेगी। कलीसिया आज अगर इसमें 1000 हैं तो 10 साल के बाद इसमें 10,000 लोग हो जाएंगे, और जगह कलीसियाओं की स्थापना होगी इस कलीसिया के द्वारा। मैं इस कलीसिया की बात, अपने कलीसिया की बात करता हूँ। Let there be church growth through this church. Let our South District of Delhi bring forth many other new congregations in South Delhi and on whole Delhi. And that is possible when we are led by the Holy Spirit. We are being led by the Holy Spirit and are obedient to His divine leading and guidance. आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। हम धन्यवाद देते प्रभु कि आपके वचन के खुलने से प्रकाश होता है प्रभु, और आपने अपने वचन के प्रकाश से हमें आलोकित कराया। हम आपका धन्यवाद। वी थैंक यू लॉर्ड दैट यू योर वर्ड व्हेनेवर इट इज शेयर्ड लॉर्ड दैट्स लाइट। थैंक यू लॉर्ड दैट यू हैव created light in us, Lord. The darkness has gone, the ignorance has gone,
and now we are walking in your light. Help us, Lord, that we should be willing to listen to your small voice in our conscience. प्रभु हमारी मदद करे कि हम अपने विवेक में आपके धीमी आवाज को सुनने वाले बने प्रभु, और आपके साथ चलने वाले बने, और उसके प्रति प्रभु हमें आप आज्ञाकारिता प्रदान करें। इस धन्य कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप हमारी मदद सहायता करें। हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। और जब प्रभु हम इस बहुत ही कठिन दिन में प्रभु, इस कोरोना वायरस के दिन में प्रभु जी, हम चाहते कि आप उस वायरस को दूर करें परमेश्वर, चंगाई दें हमारे राज्य को, हमारे देश को, हमारे संसार को। जो वचन के बीच उगाया गया प्रभु, उस पर आपकी आशीष हो। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रिय भाई और बहनों, कुछ सूचनाएं हैं जो हम इस प्रकार से सुनेंगे। इन दिनों में जो हमारी बाइबल स्टडी हो रही है, बाइबल अध्ययन, वो जारी रहेगी और हम लोग हर दिन शाम के 7:30 बजे इसमें भाग ले रहे हैं। तो मेहरबानी से आप इसके लिए तैयार रहिएगा। और कुछ लोग देर से खोलते हैं, देर से देखते, लेकिन मैं जब देखता हूँ रात को 10, 10:30, 11, 12 बजे तक, तो बहुत से लोग इन अध्ययनों को देखते हैं और उससे आशीष प्राप्त करते हैं। तो मेहरबानी से ऐसा ही करते रहिए। डियर फ्रेंड्स, आई होप दैट यू आर ऑल ब्लेस्ड बाय दिस बाइबल स्टडी एंड लेट अस स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड एंड लेट अस बी हम्बल एंड आस्क द लॉर्ड टू take care of our lives, forgive us, pardon us of our life which is not sometime in accordance to His will. So let this Bible studies and during this day's meditation bring us to the point where we say, Lord, I need to be made renewed in my inner person, in my inner life, so that everything becomes new and I make a new covenant with you, that I'll walk with you day by day for your glory. Let's also remember certain things here. Our friends of Methodist Men Fellowship are helping the poor people. They are distributing ration, raw ration, and they have done, I think thus far we have distributed almost 125 bags or kits, and in the days to come it will be given, because the now situation looks grim and situation is very serious. Many people have lost their jobs, many people are still in a dilemma of uncertainty. मैं चाहूँगा कि हम लोग और हमारे मेथोडिस्ट मैन फेलोशिप के भाई लोग जो हमारे लोगों की मदद करते हैं, चाहे हमारे कलीसिया के हों या बाहर, उनकी मदद करते हैं जिनके घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं। हम थोड़े दिन इसको और बढ़ाना मांगते हैं ताकि लोगों की मदद हो सके। कभी कभी वो खाना बना के बांटते हैं और कभी कभी रॉ राशन भी देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसके लिए आप जो भी देना चाहें आप देते रहें। और इसके लिए मैंने 2 जनों को मुकर्रर करा है, मिस्टर जेम्स अमलिक एंड मिस्टर जॉली सैमुअल। तो इनको आप अपना डोनेशन दें। प्लीज़ अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड डियर फ्रेंड्स, दैट वी आर नॉट putting this in our church fund, because once it is deposited in the church fund through your money transfer, it will be in the church fund. So if you want to give this money or in kind, please contact Mr. Amalik and Mr. Samuel so that these monies are used. जैसे मैंने कहा था कि जब सब कुछ सामान्य हो जाएगा तो सारा ब्यौरा दिया जाएगा, वो हमें देंगे और इसको क्रेडिट और डेबिट सारा देख करके, जो खर्चा हुआ है उसको देख करके एक लिस्ट बनाई जाएगी और उसको हमारे चर्च के नोटिस बोर्ड में लगाया जाएगा। और निश्चित रूप से एक धन्यवाद का पत्र होगा जो पादरी साहब देंगे और उसको भी वहाँ लगा दिया जाएगा। तो सब कुछ आपके पास होगा। सो इट विल बी ट्रांसपेरेंट, काइंडली रिमेंबर दैट ऑल्सो। हम प्रार्थना करें अपने कलीसिया के अगुओं के लिए, हमारे बिशप साहब के लिए, हमारे पासबानों के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट्स के लिए, हमारे दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए प्रार्थना करें। प्रभु हर को संभाल, हर की सहायता करें। और साथ ही साथ अपने देश के लिए प्रार्थना करें, हमारे देश के अगुओं के लिए कि प्रभु उन पर अपना अनुग्रह बनाए रखें। तो निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं आज के बाइबल स्टडी के लिए जो हमने करी प्रभु, और हम चाहते कि ये स्टडी निरंतर होती रहे प्रभु, ताकि हम आशीष प्राप्त करें। आज का वचन जो बोया गया प्रभु पौलुस के द्वितीय मिशनरी यात्रा की शुरुआत के दिनों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे बातचीत करी और हम चाहते प्रभु कि इसमें बढ़ते चले जाएं। लॉर्ड ब्लेस दिस बाइबल स्टडी, ब्लेस आवर पीपल। वी स्पेशली नाउ प्रे लॉर्ड फॉर द पीपल इन बंगाल, इन कैलकाटा एंड नॉर्थ एंड साउथ 24 परगना and Medinapur in Sundarban area, Lord. Many people have lost their everything, Lord. Many people have died because of the great cyclone that struck that area on 20th of this month. We pray, God, supply their needs, and those who have lost their loved ones, Lord, console their hearts, and government is trying their best to help, and also some of the individuals and some of the NGOs, Lord, that are blessed in Jesus. Lord, undertake them. We pray for those who are suffering because of this coronavirus, Lord, touch and heal them, Jesus.
Thank you, Lord, that you heard our prayer. Bless our church, bless our society, bless all the leaders in our church, Lord, so that each one may continue to grow in you and we may bring glory, honor to your name. In Jesus' matchless name I pray. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with all of us now and forevermore. और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दुस की इफ़ाक़त और शराकत हमें सारे के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे। आमीन। यीशु ही प्रभु है। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे और आपको अपने सेवा के लिए इस्तेमाल करे। हम फिर मिलेंगे कल, यानी 26 मई को शाम को 7:30 बजे। तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। सबको शुभ रात्रि। धन्यवाद।